मनुष्य वंश क्यों खाए, तुम सिराई से न्याय करते हो? O congregation, do you judge uprightly? This is the subject I'm going to speak today. और इसी विषय में आज हम बात करेंगे। First of all, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. और मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में आह्वानित करता हूँ। What a wonderful time we are in the presence of our Lord Jesus Christ. और कितना अच्छा समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। As I said, that today's my subject is from Psalms 58. और जैसे मैंने कहा था कि मेरा संदेश जो है, आज का संदेश वो भजन संगीता 58 से है। Again, I give thanks to Brother Singu Raju for reading from Psalms 58. May God bless you and your family. और ब्रदर सिंह राजू के लिए हम धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने भजन संगीता को पढ़ा है। We see this is another psalm that was written and sung by King David. और इस भजन संगीता को राजा दाऊद ने लिखा है। You think like this psalms was written when he was in a comfort zone, when he was in an easy going situation? No, when he was going in a difficult situation, that was the time this psalms was written. क्या तुम ये सोचते हो कि दाऊद के जीवन में जब उन्होंने इस भजन संगीता को लिखा है कि सब कुछ ठीक था? नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उनके जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। You see, there are many songs where when we sing many songs that was written by many people. There were many books that were written by many saints and apostles, and there many authors were written. So they were not in their easy position or comfort position. They were in their difficult situations too. और हम ऐसे ही देखते हैं कई सारों ने जिन्होंने गीत लिखे हैं, जिन्होंने जो हम देखते हैं जिन्होंने संदेश लिखे हैं, ये जो उन्होंने लिखा है ये उन्होंने जो उनके जीवन में कुछ अच्छा समय नहीं था जो जब कई सारे लोग इन्हें लिख रहे थे। You see, many great things happens only when you go through difficult situations. और कई सारे महत्व चीज हमारे जीवन में होते हैं जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं। And many times we feel ourselves and we think ourselves why we are going through these situations. और हम कई बार अपने मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा समय हमारे जीवन में क्यों आया है। I'm sure God wants to mold you more. और मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर जो है हमें सिद्ध कर रहा है। He wanted to use you more. और परमेश्वर उसकी सेवकाई में हमें और भी इस्तेमाल करना चाहता है। He wanted to do great things in your life. और हमारे जीवन में परमेश्वर कई सारे कार्यों को करना चाहता है। When you are going through that difficult situation, He is making you more tough. और जब हम उस विपत्ति के समय से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर हमें सिद्ध कर रहा है। Why He is making you more tough? The reason is that He's making you more tough so you can handle the situations. और क्यों परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में हमें मजबूत करते हुए चलाता है? क्योंकि ताकि हम सभी समयों का हम सामना कर सके। We know the life of Moses. और हमें मूसा के बारे में पता है। Moses was in a great comfort place for his life for the 40 years. और हम देखते हैं मूसा जो है उनके कई 40 साल तक उन्होंने अपना जीवन आराम में बिताया है। He was in a very, very good comfort zone. He was in a very good place. He was in a very good, like he was living as like a prince in the palace. वो जैसे एक राजकुमार की तरह कई सारे आराम से वो जीवन अपना बिता रहा था। When you are in a comfort situation, great things won't happen. और वैसे ही जब आप आराम की जिंदगी बिता रहे हो तो कई महत्व चीजें जो है नहीं होते। When he took the steps, what happened? लेकिन जब मूसा ने जैसे उन्होंने आगे बढ़ा, See the result. He spent another 40 years in the desert. और हम देखते हैं कि दूसरे जो 40 साल उन्हें कैसे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। So when he was spending his life in desert, he was thinking, this is how my life is. और जब वो अरण्य से गुजर रहे थे तो वही सोच रहे थे कि मेरा जीवन तो बस यही है।
When he was thinking, this is how my life is going to be, God says that, no, no, Moses, this is not how your life is going to be. और जब परमेश्वर उनसे बात कहते हैं कि आपका जीवन ऐसे ही समाप्त नहीं होगा, So he was thinking, I'm going to spend a life like this. I'm going to grazing the sheep of my father-in-law in the desert for the rest of my life. तो मूसा ऐसा सोच सकता था कि वे जो भेड़ी बकरियों को वो चला रहा था ताकि वो उसका जीवन जो है सिर्फ भेड़ बकरियों के बीच में होगा। But we know very well God had some other plans for him. लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर जो है उनके मूसा के लिए कई सारे उनके इच्छाएं थे। God allowed Moses to go to their situations. और परमेश्वर ने मूसा को उस परिस्थिति के द्वारा चलने के लिए अनुमति दी थी। Sometimes in our life, you must have to go through these desert situations. और हमें भी हमारे जीवन में भी ऐसे रेगिस्तान से जो हम गुजरते हैं कई बार। We see he spends another 40 years in the desert. और हम देखते हैं कि वो 40 साल जो है दूसरे अपने 40 साल को रेगिस्तान में गुजारते हैं। He was in wilderness. और वो रेगिस्तान में था। He was alone. और वो अकेला था। He was in emptiness. और उसमें उसके जीवन में कुछ नहीं था। Everything was void and nothing was there. और उसके जीवन में जो सब कुछ शून्य था और उसके पास कुछ नहीं था। No one was there to comfort him. और उसके पास कोई नहीं था जो उनको No one was there to help him. और उसको कोई मदद करने वाला नहीं था। No one was there to take him out of his troubles. और उन्हें उस मुसीबत से छुटकारा देने वाला कोई नहीं था। If you are going through this type of a situation, अगर ऐसे ही आपके जीवन में भी है, don't think that God is going to leave you. और ये मत सोचना कि परमेश्वर आपको वही छोड़ देगा। On the other side, this is what I'm thinking about. लेकिन हमें ऐसा सोचना है Moses had the burden. कि मूसा को जो है उन्हें जो उनका हृदय जो है परमेश्वर की ओर था। He had the burden for the people of Israelites. और इस्राएल के जो लोग थे उनके लिए उनका मन उनके ऊपर था। He had no burden for him. और अपने आप पे उनका मन नहीं था। But he had burden for others. लेकिन उनका बोझ जो है वो दूसरों के लिए था। He wanted to take them out of the slavery. और वो जो है सभी लोगों को छुड़ाना चाहता था। So here, this is what we see. God just want that. और हम यही देखते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कैसा काम कर रहा था। So if you have the burden for the people, अगर हमारे जीवन में भी हमें दूसरों की ओर अगर हमें बोझ है, if you have the burden for his kingdom, और अगर हमें परमेश्वर की राज्य की ओर हम सोचते हैं, if you have a burden for his ministry, और अगर हम परमेश्वर की सेवकाई के बारे में अपना मन लगाते हैं, if you have burden for his work, और अगर हम उनके काम में मन लगाते हैं, that means you are available for him so he can use you. उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है और हम उनके लिए हैं। And we see for the next 40 years how God used Moses, and through Moses he took all the Israelites out of the Egypt. और हम देखते हैं परमेश्वर कैसे मूसा को इस्तेमाल करता है अपनी सेवकाई में, और लोगों को जो है उस दासत्व से छुटकारा दिलाने के लिए मूसा को परमेश्वर चुनता है। So we see that God used Moses to take Israelites out of the Egypt. तो हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों को जो है गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करता है। When you are going through the tough time, अगर जब हम अपने जीवन में कई मुसीबत से गुजरते हैं, many people judge you. और कई लोग जो है आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। You cannot control the judge. और हम जो है वो उस अन्याय को हम बदल नहीं सकते। Let them think.
और उन्हें जो सोचना है उन्हें सोचने दे, what they are thinking, और जो कुछ भी वो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दे। what you have to do. और हमें क्या करना है Be humble, कि हमें जो है नम्र बन के रहना है, be patient, और हमें जो है ऐसे ही टिक के रहना है, calm down. और हमें नम्र बन के रहना है। If you do that, और अगर हम वो चीज़ को करेंगे what is going to happen? तो क्या होगा? The Egyptians you are seeing today, जो मिस्र के लोगों को हम देखते हैं, you will not see never ever more. तो हम उनको कभी दोबारा नहीं देखेंगे। So here we see King David was going through in difficult situations. तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है कई सारे कठिनाइयों से गुज़र रहा था, He was in difficult times. और वो कई मुसीबत के समय से गुज़र रहा था। So many times we heard about that and we are thinking only King Saul was against him. तो कई बार हम सोचते हैं और हम ये मानते हैं कि सिर्फ़ शाऊल जो है सिर्फ़ वही दाऊद के विरुद्ध था। When I was reading the scripture, not only Saul, but the lawmakers, the rulers, the judges, they all were against him. लेकिन हम देखते हैं जब इस भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे जो न्याय करते हैं और कई सारे लोग जो है वो दाऊद के विरुद्ध थे। When 1 or 2% they are against you, it's easy, but when all are against you, it is very, very difficult. जब 1 या 2 आदमी आपके विरुद्ध है तो हम उसे सहन कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग जब हमारे ऊपर और या फिर हमारे खिलाफ जो है वो विरुद्ध बनते हैं तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। So we see that he was going through those difficult times. तो हम उसके जीवन में देखते हैं कि दाऊद जो है वो कई सारे मुसीबतों से चल रहा था। So he was pointing out to Saul's judges और तो वो शाऊल के न्यायों के बारे में बात कर रहा था, and counselors. और जो सिधाई करते हैं। So what they did, they met together तो हम देखते हैं वो सभी लोग जो मिलके, to consult. और वो सभी जो है उनका आदेश लेते हैं। So they were consulting like what they should do that go against David. और सभी लोग जो है आपस में मिलके दाऊद के खिलाफ क्या कर सकते हैं उसका जो है वो योजनाएं करते हैं। And probably passed a sentence upon him और कई सारे निंदाओं को उन्होंने दिया है। as a guilty of rebellion. और हम देखते हैं कि कई सारे दोष भी उन्हें उनके ऊपर उठाते हैं। So he cried out, "O ye sons of men!" तो वो पुकारते हैं कि हे मनुष्य वंशियों के लोगों। So he calls them तो उन्हें वो पुकारता है to remind them और उन्हें याद दिलाता है, that they also were men. और उन्हें यह याद दिलाता है कि वो भी जो है वो सीधे नहीं थे, And must give an account to God. और उन सभी को जो है एक दिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर उनका न्याय करेगा। So he is saying what an account to God, what he's going to give the account to God for all their hard speeches. और जो कुछ भी उन लोग बोलते हैं उन सभी का जो है परमेश्वर न्याय करेगा। An unrighteous degree against him. और जो कुछ वो धर्म की बात नहीं बोलते हैं उनके प्रति जो है न्याय किया जाएगा। In some situation, this happens. कई परिस्थितियों में जो है ऐसा हो सकता है। Even if you're right, अगर आप सही भी हो, I say to many people like, when do you do argue? Argue means who are going to win. और So मैं I say that do not argue. और मैं ऐसे ही लोगों को बोलता हूँ जो निंदा करते हैं या फिर उलझ-फेर करते हैं कि उनके साथ जो है ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे जीत भी जाए तो And here, when I talk to all this, American people or the young people here who are raising in America,
I talk to them when there is an argument, do not argue, leave that place. और मैं जब इसी बात को जो है मैं जवान बच्चों को बोलता हूँ या फिर इस देश के जो लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आपसे ऐसे बात करता है तो बस वहाँ से निकल जाए। When argue comes, they don't talk much, they take the gun and shoot. क्योंकि ऐसे कोई संदर्भ आए कि वो हमसे तर्क करते हैं तो वो बोलते नहीं लेकिन हमें वो गोली भी मार सकते हैं। So it's better to stay away. तो हमें जो है उनसे दूर रहना ही अच्छा है। So here we see people will judge you. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो है न्याय करते हैं They judge you differently. और वो न्याय जो है वो अधर्म से करते हैं। Some will say you are not good enough. और कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप सही नहीं हैं। Some will say, oh brother or sister, you cannot do this. और कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि है मेरे भाई या बहन आप ये कर नहीं सकते। Some will say, oh, you do not have the capacity of doing these things. और कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप में ताकत नहीं है इस चीज को करने के लिए। Or some will say, like a brother, leave this and let other do this. और कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे भाई आप इस काम को छोड़ दो, कई और किसी और को इसको करने दो। I'm sure you all have gone through this situation. और मैं मानता हूँ कि हम सभी के जीवन में ऐसा कुछ अनुभव है। In some other day, I will tell you my examples, my life examples. But for the time, we do not have the short, because of the short of time. I'm not going to say anything about it. हमारे पास समय नहीं है तो मैं फिर कभी मेरे जीवन में जो मेरे जीवन का जो उदाहरण है मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। But when you trust in God, लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, God can use you mightily. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। So where our trust should be, our trust to be in our God. तो हमारा भरोसा जो है वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। Our trust should not be on the people or on king or on any authorities or any government things. तो हमारा भरोसा जो है वो मनुष्य के ऊपर नहीं, अधिकारियों के ऊपर नहीं, बल्कि That is the reason we read from Psalms 27. It read like this: some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए हम भजन संगीता 27 में पढ़ते हैं कि थोड़े लोग जो है वो घोड़ों पे या फिर रथों पे भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। Our trust should be in our God, Almighty God. अपना भरोसा जो है वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। That is the reason Joshua stand up and he said that, and we read like this, and he said at that time, but if serving the Lord seems undesirable to you. तो इसीलिए जो है यहोशू जो कहता है कि अगर परमेश्वर की सेवकाई करना आपको ठीक नहीं लगता, Then he said that choose for yourself. तो हमें जो है निर्णय लेना है। So he is questioning this day whom you will serve. और वो ऐसे प्रश्न पूछता है कि आज के दिन आप किसको अपना परमेश्वर मानोगे? Whether the gods of your ancestors, क्या आप आपके जो पितृ के परमेश्वर को, served beyond the Uparits, जो सभी परमेश्वर को मानते हैं, or the gods of the Amorites, और या फिर एमोराइट्स के परमेश्वर को, in whose land you are living. जिनके स्थान में आप रह रहे हो। Here Joshua said, can we say together? और यहोशू ऐसा कहता है कि क्या हम इस सभी एक निर्णय ले सकते हैं, But as for me and my household, लेकिन मैं और मेरा परिवार no matter what, कुछ भी हो जाए, we will serve the Lord. हम तो परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। So here we see the lawmakers are against you. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्याय करते हैं वो हमारे विरुद्ध है। If the lawmakers are against you, no one can like save you. अगर जो अन्याय करने वाले हमारे विरुद्ध है तो हमें कोई बचा नहीं सकता, Even though you are right. भले ही हम सही हो।
When the lawmakers are against, where will you go? अगर अन्याय करने वाला ही ठीक नहीं है तो हम कहाँ जा सकते हैं? Where will you hide yourself? तो फिर हमें न्याय कौन देगा? That is the reason we read in Psalms 58 on the verses first, do your rulers indeed speak justly? और इसीलिए हम भजन संगीता 58 पहले वचन में देखते हैं कि हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? Do you judge your people with equity? क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? So think this the most. तो हम चलो इसके बारे में हम सोचते हैं। When wrong is done under the form of law, it is worse than any other. जब जो है न्याय के बदले जो है अगर अन्याय किया जाता है तो उससे कोई बुरा नहीं हो सकता। Now he's asking, do you judge uprightly? तो वो प्रश्न पूछता है कि क्या आप सीधाई से न्याय करोगे? Do you judge right things? क्या आप सीधाई से न्याय करोगे? He's asking to them, are your judgment in accordance with the truth and justice? तो वो कहता है कि क्या आप सचमुच अम, धर्म से न्याय करते हो? Now we see that he's going on, and we see on the verse second. और इसी बात को हम दूसरे वचन में देखते हैं। Verses to know in your heart you devise injustice. और दूसरे वचन में हम देखते हैं कि नहीं तो मन ही मन कुटिल काम करते हो। And your hands mete out violence on the earth. और तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। And in verses 3 we read, even from birth the wicked to go astray. और तीसरा वचन ऐसा कहता है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराई हो जाते हैं। From the womb they are wayward, spreading lies. वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। And the verses 6 we read like this, break the teeth in their mouths. और छठे वचन में हम देखते हैं, है परमेश्वर उनके मुंह से दांतों को तोड़ दे। Lord, tear out the fangs of those lions. है यहोवा उन जवान सिंहों को धोड़ों से उखाड़ डाल। And verses 7 read like this, let them vanish like water that flows away. वे धुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। When they draw the bow, let their arrows fall short. जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। So he was saying all these things when he was in difficult situations. तो हम देखते हैं दाऊद जो है इन सभी वचनों को जो है उनके जब वो कठिनाइयों से चल रहा था तब ऐसे वचन को कहता है। He was saying when he was in great pain. और वो कई दर्द से गुजर रहा था जब उन्होंने इस वचन को लिखा है। Now we read the verses 10, what the verses 10 says. अगर हम वचन 10 को पढ़ सकते हैं। The righteous will be glad. धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा। When they are avenged. और वह अपने पाँव को when they dip their feet in the blood of the wicked. वह अपने पाँव दुष्ट के लहू में धोएगा। Then people will say, और तब लोग ऐसा कहेंगे, surely the righteous still are rewarded. निश्चय धर्मी के लिए फल है। Surely there is a God who judges the earth. निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। So the righteous will go through tough situations. तो धर्मी जो है वो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। But at the end he'll be rewarded good. लेकिन हम देखते हैं कि अंत में उन्हें फल जरूर मिलता है। At the end we see surely there is a God who judges the earth. और निश्चय ही परमेश्वर है। His judgment is final with perfection and purity. जो पृथ्वी पर न्याय करता है और उसका न्याय जो है वो अंत के लिए है। Here we see no man is perfect, but his will is perfect. हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है लेकिन परमेश्वर सिद्ध है और उसका इच्छा भी।
We read Romans chapter 12, verse 2. और वैसे ही हम रोमियो को लिखा हुआ पत्री अगर Don't अध्याय copy the 12 behavior and custom of this world. हम देखते हैं कि इस संसार के अगर चीजों को हम करेंगे, Let God transform you into a new person by changing the way you think. परंतु परमेश्वर हमें हमारे मन को नया करे, Then you will learn to know God's will for you, तब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते, which is good and pleasing and perfect. जो सही है और परमेश्वर की बलि है, You do everything in perfect. और सिद्ध इच्छा, His will is perfect. और परमेश्वर की इच्छा जो है वो सिद्ध है, His will in your life will be perfect. और परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे जीवन में सिद्ध होता है, You don't need to worry और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। what situation you are going through. कोई भी आपके जीवन में किसी भी परिस्थितियों के द्वारा आप गुजर You रहे don't हो, need to worry और हमें चिंता नहीं करना है। what circumstances you are going through. कोई भी परिस्थिति जो हम गुजर रहे हैं, You don't need to worry और हमें चिंता नहीं करना है। a tough time you are facing. और किसी भी जो मुश्किल समय में से हम गुजर रहे हैं, You don't need to worry हमें चिंता नहीं करना है। the troubles you are going through. और जो विपत्ति हमारे जीवन में है, People will judge. और लोग जो है वो न्याय करेंगे, They will say different things. और वो निंदा कर सकते हैं, They will say you can't do this. और वो कहते हैं कि आप ये कर नहीं सकते, They will say that you don't have the talents. और वो कहते हैं कि आप इस चीज को नहीं कर सकते, They will say you don't have this. और वो कह सकते हैं कि आप में उस कुछ वो चीज नहीं है, They will say you don't have that. और वो कहते हैं कि आप में वो चीज नहीं है। Please don't concentrate on those things. लेकिन उनके बातों को आप ना सुने, Concentrate on Him, लेकिन आप परमेश्वर की बातों को सुने, His word, और उनके वचन को सुने, His will. और उनके इच्छा को आप सुने, His will is perfect. और उनका इच्छा जो है वो हमेशा के लिए है। The world is not perfect. और इस संसार जो है वो सिद्ध नहीं है, No one is perfect. और इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं है, We have our own shortcomings. और सभी को जो है उनकी कमजोरियां हैं। Focus on Him. लेकिन हमें परमेश्वर, अपना मन जो है Let's परमेश्वर पे, concentrate on Him. और परमेश्वर के वचन पे हमें लगाव देना है। Let people judge. चाहे मनुष्य जो है वो न्याय कर सके, Let people raise questions. और मनुष्य अगर हमें प्रश्न पूछे, Because of that, let our focus on Him not change. लेकिन हम हमेशा जो है अपना मन परमेश्वर के ऊपर रखे, Let concentrate on Him. और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपना मन रखे। As we read in Matthew chapter 6:10. और मत्ती की सुसमाचार 6 और 10 में हम ऐसा पढ़ेंगे Your kingdom come. कि आपका राज्य आए, Your will be done आपकी इच्छा पूरी हो, on earth as it is in heaven. इस धरती पर जैसे स्वर्ग में हो। And when we read the book of John chapter 1 and 1. और वैसे ही हम यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचन को पढ़े। In the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the God was word, और वचन and the word was God. और वचन परमेश्वर था। He was with God in the beginning. तो हम देखते हैं कि आदि से वो परमेश्वर के साथ था। Let's focus and concentrate on His word. तो हमें जो है परमेश्वर के वचन पर हमें लगाव देना है। Let His will be done in our life. और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा हो। Let His blessing pour down in our life. और उनके आशीष अपने जीवन में आए। Let God bless you. We sing a little bit song and we close this sermon. Praise God. There shall be showers of blessing. This is the promise of love.
There shall be seasons refreshing. Send them, O Savior, above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. May God bless you. Thank you.